Good evening, friends. This is me, Asit Kumar Yadav, and this was my college from where I studied. That is Marwari College, Bhagalpur, and I studied from there my intermediate. And this is the fourth videos of chapter number 3, that is human reproductions. And earlier we have discussed 3 videos, and all 3 videos are already uploaded of chapter number 3. And so this is the last videos of this chapter, that is uncertain discussions, because this was the last topic that was left yesterday, and today we will discuss these topics, and then we will move to the notes and then the exercises, and then we will cover the next chapter, that is chapter number 4, that is reproductive health. Now let's start today's video. And if you are new my channel, please like my videos, share my videos, and subscribe my channel to be updated, that you will get notification that whenever I upload my videos, and you will never miss the class. That's all. Let's start today's videos. This is our chapter, that is chapter number 3, human reproductions, and we have completed the half of the topics has already completed, and today we will discuss the last topic, that is parturition and lactations. And earlier we have completed, that is male reproductive system has completed, and female reproductive system completed, gametogenesis, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development has already completed. And today we will discuss, that is the last topic, that is parturition and lactations. And after that we will discuss the notes of this chapter, and then we will discuss the exercises, that are whatever the question in the last page of this chapter was given, that exercises, and we will discuss that exercises, and then we will move to the next chapter, that is chapter number 4. And let us start today's videos. We have already covered these topics, and everything diagram analysis has been already completed, and we have already completed that topics, that whatever we have discussed, and diagrams has already completed. And now later we will discuss, that is the last topic, that is parturition and lactations. Now it takes some time because in this PDF format, and there is some technical problem in my mobile, that PDF loading takes some time in my mobile, so I am scrolling slowly because PDF is loading in slowly mode. So wait for few second, and this is the last topic that today we have to discuss, this topic, that is parturition and lactations. Now let us start. And earlier we have discussed already topics, that whatever is given, and let us start. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period. We have already discussed what is the gestation period. The period from when the female partner get conceived, that is she got pregnancy, and before the time that is delivery of the child, this period is called the gestation period. And there is written that the average duration of human pregnancy is about 9 months, means कि जो मतलब ह्यूमन बींग्स में जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है कितना होता है, अबाउट 9 मंथ, यानी 9 महीना का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. विग्रियस कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी काउज एक्सप्लेशन डिलीवरी ऑफ द फीटस. और जो कंट्रैक्शन होता है यूटेरस में, जो कंट्रैक्शन होता है उसका कारण क्या होता है, एक्सप्लेजन या डिलीवरी, बेबी का डिलीवरी होता है. दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशंस. और इस प्रोसेस को, चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो चाइल्ड बर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं. पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन. किससे होता है, इंडोक्राइन, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा पार्चुरेशन होता है. द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस. जो सिग्नल मिलता है पार्चुरेशन के लिए, किससे होता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, जो कि 9 मंथ में हो जाता है. आफ्टर कंजीव, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी इन द 9 मंथ्स दैट फीटस गॉट फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी टू बी डिलीवर्ड. एंड प्लासेंटा विच इंड्यूस मिल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. और प्लासेंटा से ही पता चलता है कि मतलब फीटल इजेक्शन मतलब यानी कि डिलीवरी के लिए रेडी, एंड इट इज़ रेडी टू बी डिलीवर्ड. दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. और इसी के कारण क्या होता है, ऑक्सीटोसिन, ये जो हार्मोन होता है उसका रिलीज होता है मैटरनल पिट्यूटरी से. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स. ऑक्सीटोसिन कहाँ एक्ट करता है, यूटेराइन मसल्स पे, और एंड काउजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कंट्रैक्शन. और इसके कारण स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूती से यूटेराइन कंट्रैक्शन होता है, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, जो कि फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट करता है, यानी मतलब उसको बढ़ावा देता है. द
स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कंट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन, जो कि स्टिमुलेटरी कंट्रैक्शन और रिफ्लेक्स बिटवीन होता है, रिफ्लेक्स होता है किसके बीच में होता है, यूटेराइन कंट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन। से क्या क्या होता है, स्ट्रॉन्गर मतलब और मजबूती से मतलब उसका कंट्रैक्शन होता है। दिस लीड टू द एक्सप्लेशन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू बर्थ कैनाल, जिसको हम लोग पार्चुएशन कहते हैं, यानी कि जिसके कारण क्या होता है, बेबी मतलब बाहर आ जाता है किससे, बर्थ कैनाल, यानी यूटेरस से बाहर आ जाता है बर्थ कैनाल के रास्ते। उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुएशन बोलते हैं। पार्चुएशन हम लोग यहाँ देखे ही क्या होता है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर, जिसका कारण क्या होता है, बेबी का बॉर्न हो जाता है, इन्फेंट डिलीवर हो जाता है। द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस, और जो प्लासेंटा होता है वो भी बाहर आ जाता है, एक्सपेल्ड आउट ऑफ द मतलब गर्भाशय से बाहर आ जाता है। अब व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट और इंड्यूस डिलीवरी, मतलब इंजेक्ट और इंड्यूस डिलीवरी करता है। अब देखते हैं आगे क्या है। द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंसिएशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जो मेमोरी ग्लैंड होता है फीमेल मेंबर में, उसमें क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होने लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय ही, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, और उसमें क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि दूध बनना शुरू हो जाता है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, और जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, जिसके कारण ये क्या हेल्प करता है, जो मदर होती है मतलब फीमेल पेरेंट होती है, उसको मतलब बेबी को फीडिंग यानी कि खाना भोजन में मदद करता है, जिसके कारण बच्चा दूध पीकर भी रह सकता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, और जो इनिशियल फ्यू डेज यानी कि शुरुआत के कुछ दिनों में जो दूध प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम होता है। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, जिसमें क्या होता है, बहुत सारा एंटीबॉडीज़ होता है। एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़, और जिसके कारण क्या होता है, जो रेसिस्टेंस यानी कि मतलब इसेंशियल रेसिस्टेंस, डेवलप रेसिस्टेंस मतलब कि यानी कोई बीमारी नहीं होता है बेबी को अगर कोलेस्ट्रम दूध यानी कि मतलब शुरुआती कोई दूध पिलाया जाए, मतलब पिलाया जाता है, जिसके कारण कि बेबी में कोई बीमारी जल्दी नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द initial period of infant growth is recommended by the doctors by bringing up a healthy baby, यानी कि एक हेल्दी बेबी के लिए क्या है, इन्फेंट मतलब क्या कहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज इन ब्रेस्ट फीडिंग देयर इज ए कोलेस्ट्रम विच इज कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज that provide resistance to the newborn babies. And this topic got completed, and summary we have not discussed because summary we have already completed every lines of this chapter, and there will no need to discuss the summary because summary takes more times, and it goes that time killing. And tomorrow we will discuss that notes of this chapter, then we will discuss this exercises will also be discussed by me, and then we will move to the next chapter. And thanks for watching my videos. If you are new my channel, please like, share and subscribe my channel to be updated. And thanks for watching my videos. That's all.